Hello, everyone. Welcome to Ellie's Grid. So we are back with another question on para completion. So let's discuss it. So this is the question where you have to fit this sentence in one of these four blanks where it is best fitted. So let's start. This is the sentence which is given to us. This was years in the making, but fast-tracked during the pandemic when people started being more mindful about their food, he explained. So this sentence, it is giving us some hint that this, pronouns पे ध्यान दो, this. So we must have talked about something before it, तभी तो आप pronoun use कर सकते हो. Why do we use pronouns? To refer to a noun that we have already discussed before. तो ये this किसी को refer कर रहा है, उससे पहले वो चीज आ चुकी होगी, तो उस चीज का ध्यान रखना है. और secondly, he explained, who explained? किसी पर्सन का तो रेफरेंस होगा ना जिसको हम ही से रेफर कर रहे हैं अब. सो दिस कैन बी अ गुड हिंट हियर. And what is this sentence saying? It's saying that this was years in making. Something was there जो बहुत सालों से चल रहा था, but fast pace पर pandemic के time हुआ. But तो पहले इतना fast नहीं था, हो रहा था, but it was slow. But during the pandemic, it became quite fast. And what happened that time? Because people became more mindful about their food. So this is the meaning of the sentence. Let's see where it fits. For millennia, ghee has been a venerated staple of the subcontinent diet, but it fell out of favor a few decades ago when saturated fats were largely considered to be unhealthy. So this is telling us कि पहले तो बहुत staple, it was the staple diet, but some decades before, few decades ago, तो कुछ past की reference दे रहा है, तब हम लोग saturated fat उनको unhealthy consider करने लग गए. अब फिर एक blank है, but more recently. Now pay attention to but also. But मतलब it will connect two things which have opposite meaning. तो but के बाद जो sentence में meaning है उससे पहले उसका opposite होना चाहिए. But more recently, as the thinking around saturated fats is shifting globally, Indians are finding their own way back to this ingredient that is so integral to their cuisine. Now, but is telling us कि अब Indians, not just Indians but globally, there's a shift towards this ingredient. We are shifting back towards this ingredient, right? तो बट ये बता रहा है कि नाउ वी आर शिफ्टिंग. बट से पहले वाला सेंटेंस क्या बता रहा है कि दे हैव बीन कंसिडर्ड अनहेल्थी. अब लोग उससे दे पीपल आर फॉलिंग आउट, लोग छोड़ रहे हैं. तो वन जो ब्लैंक है इसमें ये वाला पॉइंट इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो बट से पहले वाला पार्ट है और जो बट के बाद वाला पार्ट है वो आपस में एक दूसरे का ही ऑपोजिट है. तो जो यहाँ पर हमें ब्लैंक दिया हुआ है उसमें कुछ भी अननेसेसरी हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज ये फ्लो बिगड़ जाएगा. देयर इज नो रिक्वायरमेंट. एंड सेकेंडली, अभी हम ही एक्सप्लेन भी नहीं यूज कर सकते यहाँ पर, बिकॉज द नेम ऑफ द पर्सन, वी रियली डोंट नो हु इज दिस ही हियर. बट अदरवाइज मीनिंग वाइज ऑल्सो यू कैन सी कि कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर. तो जब तक जरूरत नहीं होती हम अननेसेसरी इंसर्ट नहीं करते, बिकॉज वी हैव टू सी कि पैराग्राफ जो है वो कोहेरेंट है. एक सेंटेंस दूसरे से लिंक है, वो दूसरे वाला थर्ड से लिंक है ना. तो जब तक हमें कोहेरेंस दिख रही होती है हम इंसर्ट नहीं करते, हम उस जगह पे देखते हैं जहां पे वी फाइंड देयर समथिंग मिसिंग हियर. सो देयर इज नो नथिंग दैट मेक्स अस फील देयर समथिंग मिसिंग हियर. तो जो ये बट के बाद पार्ट है वो उसी का ऑपोजिट है जो उससे पहले दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट में कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स एलिमिनेट ऑप्शन 1. नाउ so first ke baad we are talking about ki now people are shifting towards this ingredient, including Indians. So now we are talking about shift towards it, and now we have one more blank, the second blank. For Karmakar, a renewed interest in ghee is emblematic of a return to basic movement in India. Okay, for Karmakar, now we have one person, and as per this person, देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन घी. ऊपर हमने जो बोला कि अब घी के टुवर्ड्स शिफ्ट हो रहे हैं, ये उसी की कंटिन्यूएशन में है कि देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन घी एंड इट इज अ सिंबॉलिक और इंडिकेटर ऑफ दैट वी आर रिटर्निंग बैक टू आवर बेसिक्स, not just for ghee but all the basics, return to basic movements in India. And then again we have one blank. तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारा सेंटेंस है ये सेकंड में आएगा या नहीं आएगा. शिफ्ट टुवर्ड्स दिस, और उसके बाद वी हैव दिस थिंग की फॉर कर्माकर. अब देखो अगेन वी हैव दिस वर्ड ही एक्सप्लेन. तो ही किसको रेफर करेंगे? ही इज अ प्रोनाउन, इट विल रेफर टू अ नाउन. नाउन का ही तो प्रोनाउन यूज करोगे. तो यहाँ पर कर्माकर आ गया है, इसके बाद हम ही यूज कर सकते हैं. इससे पहले ही कैसे यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज हमें पता ही नहीं कौन ही किसको रेफर कर रहे हैं. तो सेकंड भी इसलिए इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन. नाउ कमिंग टू थर्ड ऑप्शन,
that this renewed interest in ghee is emblematic of a return to basic movement in India. और उसके बाद हम कह सकते हैं कि let's talk about this sentence की this was in years in making, but ये pandemic के time fast track हो गया because now people have become more mindful about their food. And one more thing about second and third blank is that second में one more thing that you should notice, of course ही तो एक बहुत अच्छी hint है ही, अगर ही नहीं भी होता तो अब हम कैसे इसको जज करते, like second से पहले we are talking only about this ingredient मतलब सिर्फ घी की बात हो रही है ना, और इसके बाद थर्ड ब्लैंक से पहले हम रिटर्न टू बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि नॉट जस्ट घी बट ऑल द बेसिक्स, तो सिर्फ घी नहीं है, और ये सेंटेंस भी फूड की बात कर रहे हैं, फूड इज इंटायर फूड, नॉट जस्ट वन थिंग घी, तो इसलिए थर्ड सेंटेंस इसलिए भी बेटर है क्योंकि वो बेसिक्स जो है वो फूड के साथ ज्यादा सिंक हो रहा है। सेकंड में तो सिर्फ घी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमें सेंटेंस दिया है वो सिर्फ घी की बात नहीं है, वो फूड की बात हो रही है ना, तो वो ज्यादा बेसिक्स के साथ चल रहा है। ऑफकोर्स ही भी यहाँ पर सूट हो रहा है, विच इज ऑफकोर्स अ वेरी गुड हिंट हियर, पर नहीं भी होती तो हम उसको दूसरे वे से भी जज कर सकते थे। सो सेकंड इज ऑल्सो आउट, सेकंड से बेटर ऑप्शन थर्ड ही है बिकॉज इट इज मेकिंग सेंस हियर दैट देयर इज अ रिटर्न टू बेसिक मूवमेंट इन इंडिया, और उसके बाद की ये मूवमेंट जो मतलब all this thing was there, but during the pandemic it has become fast tracked. This movement is also part of the overall trend towards slow food, local food. In keeping with the movement's philosophy, ghee can be produced locally even at home and has inextricable cultural ties. Now we have the fourth blank. अब देखो फोर्थ ब्लैंक में होना चाहिए या नहीं। एट अ बेसिक लेवल घी इज अ टाइप ऑफ क्लैरिफाइड बटर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया एज अ वे टू प्रिजर्व बटर फ्रॉम गोइंग रैंसिड इन द हॉट क्लाइमेट। अब देखो फोर्थ से पहले क्या बात है, फोर्थ से पहले वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ यू कैन प्रिपेयर घी एट होम, है ना, घी एट होम कैसे आप या लोकली कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं ये सेंटेंस फिल करती दिस वाज इयर्स इन द मेकिंग बट फास्ट ट्रैक ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो इसका मतलब ये बनता कि घी घर में प्रिपेयर हो सकता है, ये अभी होना शुरू हुआ है, पर ऐसा तो नहीं है दिस हैज बीन डन सिंस एशियन टाइम्स, तो ये सेंस गलत हो जाती बिकॉज दिस वाज इयर्स इन मेकिंग। नो, वी नो दैट घी कुड घी कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम, दिस इज नोन टू अस सिंस टाइम इमेमोरियल, तो दिस वाज इयर्स इन मेकिंग और बस पैंडेमिक के टाइम ही होने लगा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि घी हम अभी करने लगे, विच इज रॉन्ग। सो फोर्थ तो डेफिनेटली बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो फर्स्ट वाज क्वाइट रॉन्ग, फोर्थ वाज क्वाइट रॉन्ग, सेकंड और थर्ड में हो सकता था ही गिवन है इधर, ही एक्सप्लेन, तो काफी इजी हो गया बिकॉज कर्माकर था तो उसके बाद ही आएगा जो कि थर्ड ब्लैंक में, बट अगर नहीं भी होता तो भी हम सेकंड और थर्ड में से थर्ड को चूज कर पाते बिकॉज सेकंड इज ओनली टॉकिंग अबाउट दैट इंग्रेडिएंट, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायर फूड इन दिस सेंटेंस, और वो थर्ड ब्लैंक में ही है, इससे पहले हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं विच इज रेफरिंग टू ऑल द फूड, नॉट जस्ट टू वन ingredient. So answer is third, option third. So this sentence fits best in the third blank. So I hope you would have understood this question. Now you have to answer this particular question. Thanks a lot for watching the video.